Assalamu alaikum everyone. Today we will be doing lecture number 12 and 13. Okay? Lecture number 12 we will be talking about general orthopedic disorders. Okay? We will be talking about traction, splinting and POP. Acha, what are the normal what are the principles of fracture treatment? कि जब भी किसी को फ्रैक्चर होता है तो उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, हमने उसको किस तरह से ट्रीट करना होता है, क्या स्टेप्स होते हैं? So there are basically three steps: reduce, hold, and rehabilitation. अब let's suppose एक patient की फीमर का फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है? अब फीमर का let's suppose यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, so अब ये पार्ट डिस्प्लेस हो जाएगा ऑब्वियसली फ्रैक्चर में. The first step will be to reduce. Reduce का मतलब है bones को वापस उनकी जगह पे लेकर आना. So to restore the alignment of bone fragments. So there are steps: manipulation, mechanical traction, operative reduction. उसके बाद step number 2 is hold and maintain. Once you've brought back the bones on their place, ठीक है, the fragments, उसके बाद आपने उन bones को उसी जगह पे maintain रखना है, hold करना है. उसमें we have sustained traction, traction by gravity, balanced traction, fixed traction, cast splintage, functional bracing, internal fixation and external fixation. तीसरी चीज है जी rehabilitation, जो साथ साथ हमने फिजियोथेरेपी देनी होती है पेशेंट को. All right. So traction is a method of restoring alignment to a fracture through gradual neutralization of muscle forces. ठीक है, ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, दो, restoring alignment. So traction is applied to the limb distal to the fracture so as to exert a continuous pull in long excision. दूसरा important इसमें रूल ये होता है कि जो फ्रैक्शन का मतलब होता है कि वेट अप्लाई करते हो आप, एक फोर्स अप्लाई करते हो. So it is applied distal to the fracture. अब let's suppose अगर बोन यहाँ पे ब्रेक हुई है तो ट्रैक्शन हम यहाँ नीचे वाले एंड के ऊपर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम वेट या वजन डालेंगे बोन. अच्छा, what are the methods in traction? We have skin traction and we have skeletal traction. मतलब अगर जो स्किन के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको स्किन ट्रैक्शन कहते हैं. अगर आपने डायरेक्टली बोन के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया उसको स्केलेटल ट्रैक्शन कहते हैं. All right, so what are the functions of traction? Again, the main most important function is to restore alignment of the bone. बाकी जी, reduction of fractures and dislocations, reduce the pain. जिन लोगों में फ्रैक्चर हुआ है उसमें हम to prevent deformities, correction of soft tissue contractures, ensure immobilization and minimize muscle spasms. So what are the general guidelines between skin and skeletal contractions? जो skin contraction है ये दोनों children and adults में होती है, but जो skeletal contraction है वो adults में होती है. And skin contraction applied with adhesive plaster. If you guys remember plaster में वो जो plaster of Paris आता है हमारे पास, वो इसमें POP जिसको कहते हैं वो है. और skeletal contraction with pins and wire. Skeletal contraction हम चिल्ड्रन में क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज चिल्ड्रन में ऑलरेडी बोन ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, तो हमें कोई भी पिन्स, नीडल्स या प्लेट्स, रॉड्स यूज करने की जरूरत नहीं होती. Okay, skin traction is applied to skin, whereas skeletal traction is applied to bone. So skin traction में less than 5 kg weight use होता है, skeletal traction में more than 5 kg weight. स्किन ट्रैक्शन में जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हैं ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज होते हैं, मे बी फॉर 4 to 8 weeks, can go up to 18 weeks, whereas skeletal traction is a long process. अच्छा जी, स्किन ट्रैक्शन इंडिकेशंस क्या हैं? टेम्पररी मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स. नंबर 1, मैनेजमेंट ऑफ फेमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर्स. नंबर 3, undisplaced fractures of acetabulum after reduction of dislocation of hip to correct minor fixed flexion deformity of hip injury. ये सारी ये कुछ पॉइंट्स हैं which you guys have to remember. कि स्किन ट्रैक्शन हम फेमोरल शाफ्ट में यूज करते हैं, एसिटाबुलम के अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स में. बिकॉज अगर आप लोगों को इनिशियल कुछ लेक्चर्स याद है इसके अंदर हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेस अगर हो गई है बोन तो फिर हम उसके अंदर स्केलेटल ट्रैक्शन यूज करते हैं, पिन्स, नीडल्स, वायर्स करते हैं.
All right. And direction of application of adhesive plaster is distal to proximal. अगर कभी आपने अपने घरों में किसी को फ्रैक्चर हुआ हो, उनके साथ हॉस्पिटल गए हो, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब चढ़ाते हैं तो वो डिस्टल डिस्टल पार्ट ऑफ योर बॉडी टू प्रॉक्सिमल पार्ट में इस तरह से होता है, वो मतलब उसको इस तरह से रैप अराउंड करते हैं. Okay, then we have skin traction contraindications. कौन कौन से स्टेप्स हैं, या कौन कौन से situations and just in the skin traction is not used. Number one is abrasion and laceration of skin in the area to which traction is to be applied. Let's suppose tibia या fibula का fracture हुआ and उसी area में कोई cuts भी आ गए हैं, कोई open fracture है, कोई injuries भी है, तो हम उस वक्त skin traction apply नहीं करते. ठीक है. Disturbance in blood circulation like varicose veins, impending gangrene है अगर, and dermatitis, which is inflammation of the skin. Skin traction complications. इसमें हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं, स्कोरिएशन ऑफ स्किन है, प्रेशर सोर्स हैं, कॉमन पेरोनियल नर्व पाल्सी भी हो सकती है. ठीक है. तो ऑब्वियसली एक एक्सटर्नल प्लास्टर ऑफ पेरिस स्किन के ऊपर आ रहा है, लोग एलर्जिक भी हो सकते हैं. अगर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्स्ट्रा टाइट है around your leg, या the part of the bone which is fractured, pressure sores भी develop हो सकते हैं. ये देखिए, ये सिंपल स्किन फ्रैक्शन है. लेट्स सपोज ये लेग का फ्रैक्चर है, हमने पीओपी, ये पट्टी जो ऊपर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इसके ऊपर वाइंड अराउंड किया है. उसके बाद ये एक स्लैब होती है वुडन, इसको यहाँ पे अटैच करते हैं. फिर फाइनली ये पुली सिस्टम जो होता है, ये उस तरह से कि ये वेट है. ठीक है. इस तरह से ये बोन की ट्रैक्शन है. तो ये बेसिकली, अब आप खुद सोचो, इस वेट से क्या होगा कि जो बोन के दो फ्रैगमेंट्स हैं जिनका फ्रैक्चर हुआ है, वो आपस में जुड़े रहेंगे, क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहेगी, अलाइन रहेंगे. अच्छा जी. दूसरा, जब भी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाते हो, यू कैन सी ये तरीका होता है, ये क्रिस क्रॉस मैनर में बिल्कुल नहीं चढ़ाते, ये इस तरह से होता है. ये इसको आप कह सकते हो वी अलाइन इट स्पाइरली, इसको प्रॉपर्ली कवर करते हैं. ओके. स्केलेटल ट्रैक्शन. स्केलेटल ट्रैक्शन की क्या इंडिकेशंस हैं? For those cases in which skin traction is contraindicated, patients with external fixator in situ, um, weight reduced for traction is more than 5 kgs. And application, you do not have to remember these points. Let's just go through them. हम under general anesthesia या local anesthesia apply करते हैं. Area is cleaned and draped. Mount the pin wire on the handrail. Identify the site of insertion and make a stab wound. Hold pin horizontally at right angles to long axis of pin. Apply small cotton woolen pads soaked with iodine around the pins to seal the wound. Pin should pass only through the skin, subcutaneous tissue and bone, avoiding muscles and tendons. ये बेसिकली दो तरह की पिन्स यूज होती हैं जिससे आपने दो बोन के फ्रेगमेंट्स को आपस में इकट्ठा जोड़ना है. स्टीनमैन पिन है और डेनहैम पिन है. ये एक उन्होंने स्टीनमैन पिन दिखाई हुई है, दिस इज डेनहैम. अब आप डेनहैम पिन को देखो कि ये जो मिडिल इसका पार्ट है ना, मिडिल पार्ट, ये थ्रेडेड पार्ट है. मिडिल पार्ट देखो, थ्रेडेड पार्ट है. सो इट इज यूज्ड इन कैंसिलस बोन, जैसे कैल्केनियम है या ऑस्टियोपोरोटिक बोन है, उसके अंदर हम ये डेनहैम पिन यूज करते हैं. अच्छा, कौन कौन से बोन के पार्ट्स हैं जहाँ पे स्केलेटल ट्रैक्शन यूज हो सकती है? ओलेक्रानॉन है, ग्रेटर ट्रोकेंटर है, लोअर एंड ऑफ फीमर है, अपर एंड ऑफ टिबिया, लोअर एंड ऑफ टिबिया एंड कैल्केनियम. ओके, लेट्स जस्ट सी कि ये ट्रैक्शन कैसे अप्लाई होती है स्केलेटल. ठीक है. ये देखो, अगर आपने ओलेक्रानॉन प्रोसेस पे ट्रैक्शन अप्लाई करनी है, ये देखो ओलेक्रानॉन प्रोसेस के ऊपर नीचे कॉन्डाइल्स होती हैं फ्रंट पे. ठीक है. डिस्टल ह्यूमरस फ्रैक्चर है अगर,
तो ये इस तरह से एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये इस तरह से ये एक्सटर्नल आपका सारा टूल है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम बेसिकली फोर्स सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्म इस तरह से हैंग हुई भी होती है, सस्पेंड हुई भी होती है, ठीक है। तो दिस इज ओलेक्ट्रोनॉन पिन ट्रैक्शन यूज फॉर सुप्राकॉन्डाइलर एंड डिस्टल ह्यूमरस फ्रैक्चर। अब लेट्स सपोज मैं आपको एग्जाम में ये पिक्चर दे सकती हूँ और मैं आपको से पूछ सकती हूँ कि नेम द ट्रैक्शन एंड साइट ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रोनॉन पेन ट्रैक्शन, ठीक है। जो इलेक्ट्रोनॉन प्रोसेस होती है, जो एल्बो का बोनी जो पॉइंटी पार्ट है, ठीक है, प्रोमिनेंस है, बोनी प्रोमिनेंस, ये उसका फ्रैक्चर है। जैसे वहां पे ट्रैक्शन लाइक फोर्स सप्लाई करते हैं, वो पिन इंसर्ट करते हैं। सो इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर सुप्राकॉन्डाइलर एंड डिस्टल ह्यूमरस फ्रैक्चर, ठीक है। देन आई कैन शो यू दिस डायग्राम कि ये कौन से बोनी पार्ट है। अब आप खुद सोचो कि ये फेमरल फीमर बोन है और उसकी अपर फेमरल पार्ट है। तो अपर फेमरल ट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर मीडियल या एंटीरियर फोर्स एसिटाबुलर फ्रैक्चर, ठीक है। इसी तरह ये डायग्राम में लोअर फीमर है, डिस्टल फेमरल ट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर superior force and superior force acetabular fracture and femoral shaft fracture। अगर femoral shaft involved है, acetabular involved है, superior force मतलब ऊपर से अगर force supply हुआ हो, this is mechanism of injury। So this diagram shows us distal femoral fracture, ठीक है। ये बस आपको सिर्फ अभी फिलहाल वो यूजिंग कॉटन पैड्स, ये सिर्फ हम अपर जो टिबिया है, ये डिस्टल फेमरल शाफ्ट फ्रैक्चर या प्रॉक्सिमल टिबियल ट्रैक्शन है, इस तरह से अप्लाई की गई है, ठीक है। अच्छा, डिस्टल टिबियल ट्रैक्शन क्या है? इट इज यूज्ड फॉर टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर। ये नजर आ रही है आपको दोनों बोन्स इधर इस डायग्राम में, ये एक ये टिबिया है जी और इस साइड पे पतली वाली फिबुला है, ठीक है। सो अगर डिस्टल टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर है इस तरह से, तो हम डिस्टल टिबियल फ्रैक्शन इस तरह से लगाते हैं, ठीक है। ये सारी सर्जिकल चीजें हैं, सो यू गाइस हैव टू लर्न ऑल दिस, ऑलराइट। ओके, कैल्केनियल ट्रैक्शन, ये देखें जी, ये कैल्केनियल ट्रैक्शन यूज फॉर टिबियल शाफ्ट फ्रैक्चर इन कैल्केनियस। जो आपकी हील बोन है कैल्केनियम, अगर उसका फ्रैक्चर है तो इस तरह से आप ट्रैक्शन लगाते हैं। अच्छा, सो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? ये ट्रैक्शन लगाने के क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? मैल यूनियन ये बहुत कॉमन है, ये बोन एट टाइम्स आपस में यूनियन ही नहीं हुआ, बोन फॉर्मेशन ही स्टार्ट हुई, दो बोनी फ्रैक्चर्ड पार्ट्स बीच में। डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं, लिगामेंट्स डैमेज हो सकते हैं, एंड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एपिफिजियल ग्रोथ प्लेट्स कैन बी डैमेज्ड, नर्व इंजरीज हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। अभी इनिशियली इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने ट्रैक्शन की टाइप्स पढ़ी थी। फिक्स ट्रैक्शन है which is by applying force against a fixed point of body. Gravity fraction only apply to fractures of upper limb, okay? Because upper limbs, अब पिछले एक डायग्राम में हमने देखा था कि अपर लिम्ब को हम सस्पेंड करते हैं हवा में, ठीक है। तो वो सस्पेंड की वजह से नीचे फोर्स ग्रेविटी का भी लगता है। बैलेंस ट्रैक्शन है जी, the pull is exerted against an opposing force provided by weight of body when the foot of bed is raised, ठीक है। सो अच्छा, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि ये टाइप्स आपको नाम आने चाहिए, बिकॉज ये फर्दर बहुत डिटेल हो जाएगी। यू गाइस शुड रिमेंबर अबाउट केयर ऑफ पेशेंट, कि जब एक पेशेंट को ट्रैक्शन लगाया हुआ होता है, ट्रैक्शन फोर्स, सो हाउ शुड वी केयर फॉर दैट पेशेंट, ठीक है। ट्रैक्शन शुड बी मेड कंफर्टेबल, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ट्रैक्शन यूनिट मस्ट बी इंश्योर्ड, एंड बार बार आप पेशेंट्स को कहते हो कि जी अपने टोज और फिंगर्स को मूव करें, ठीक है, पता चले कि कोई नर्व डैमेज नहीं है, nerve को infect नहीं हो रही, ठीक है। And you also check for sensation over toes and fingers, ठीक है। Proper positioning of fracture should be ensured by taking chest X-rays. Sorry, by checking for X-rays in traction. Physiotherapy of limb should be continued to minimize muscle wasting. Okay, a device used for support or immobilization of a limb or spine is known as splint, ठीक है। So splint is a device that is used to support the fractured part or the body and immobilize that part, उसको आप splint कहते हैं, ठीक है।
अब फंक्शंस क्या हैं जी? टेम्पररी इमोबिलाइजेशन ऑफ स्ट्रेन्स, फ्रैक्चर्स एंड रिड्यूस्ड डिसलोकेशंस, control of pain, facilitates patient transportation, prevention of further soft tissue or neurovascular injuries, decreases the risk of converting a minor injury to a major injury. So, what are the indications for splints? Closed fractures में splinting होती है, sprains हैं, which is muscle pull, joint infections, tenosynovitis, जो synovial cavity है उसका inflammation है, lacerations over joints, puncture wounds and animal bites of hands and feet, dislocations. Contraindications हैं जी, open fractures में splinting नहीं होती, extreme swelling में splinting नहीं होगी, अगर compartment syndrome है या carpal tunnel syndrome है, इनमें भी splinting नहीं होती, neurovascular compromise है, कोई nerve या artery का damage है, फिर भी हम splint use नहीं करते. अच्छा, complications क्या हो सकती हैं? Rarely occur if applied correctly. Most common वही है जी, bed sores हो सकते हैं, abrasions, secondary infections. Less common में neurovascular compromise है. Okay, अब हमने करना क्या है? ये देखें जी, ये splints होते हैं. मैं आपको एक बार बस दिखा रही हूँ, आपको idea हो. ये splints होते हैं. ये सिर्फ आपने support provide करने के लिए. So, preparation of the patient for splinting. Define the injury and what splint is required. Splint in position of function. Clean and repair the skin lesions. पहले आप skin को pyodine से wipe करते हो. आपने neurovascular examination करना है before the splint application, देखने के लिए कि कोई neurovascular compromise तो नहीं. Anticipate ability for child to remove clothes after splint is applied. हमारे पास fiberglass splint होते हैं, prefabricated air splints होते हैं, and plaster of Paris. अब इसके अंदर से मैंने plaster of Paris बहुत commonly देखा है. बाकी अपनी clinical practice में मैंने बाकी splints अभी ठीक है. अच्छा जी, ये जी fiberglass या orthoglass का splint है, ठीक है. Fiberglass splints का advantage ये होता है कि they're easier to apply, they can be set more quickly, they are lighter and they are water resistant. Disadvantage है जी, more expensive and more difficult to mold. इसलिए fiberglass splint बहुत कम use होता है. क्यों? क्योंकि it is difficult to mold and expensive भी है. अच्छा, ये है जी prefabricated splints. इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक शेल्स होती हैं, that are then lined with air, foam या gel compound. Same advantages and disadvantages as fiberglass. ठीक है. Air या pneumatic splint. Air splint is used to immobilize a fracture using an inflatable support. They are plastic structures preformed in a factory to fit a specific part of body. ये I have seen an air splint. Air splint में basically cavities होती हैं अंदर, air cavities, and you wrap around the arm or the leg, and this will hold the bone in place. ठीक है. This type of splint is not generally used for long-term support because it is less secure and provides less structural support. ठीक है, ये air splint होता है. Okay, specific splints and orthosis. अगर upper extremity का fracture है, elbow में हम long arm posterior, double sugar tongue, forearm में हम bowler forearm use करते हैं, hands में ulnar gutter. I don't think you guys need to know this. ये ज्यादातर आपको याद तब रहते हैं अगर आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखें. क्या? अच्छा, ये देख लो, लॉन्ग आर्म पोस्टीरियर स्प्लिंट इसको कहते हैं. ठीक है, ये आपने अक्सर बच्चों में या बड़ों में या टीनेजर्स में देखा होगा कि जब उनकी कोई इलेक्ट्रोनॉन प्रोसेस की या कोई फोर आर्म इंजरी होती है या एल्बो की भी एट टाइम्स पे. ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रॉक्सिमल रेडियस या प्रॉक्सिमल अल्ना भी इन्वॉल्व हो सकती है, यहाँ पे डिस्टल ह्यूमरस बोन फ्रैक्चर भी हो सकता है. ठीक है, so it doesn't completely eliminate supination pronation. अब ये जो स्प्लिंटिंग हम करते हैं इससे पेशेंट कैन supinate or pronate his forearm. ये देखें जी, ये फोर आर्म शुगर टोंग है, डिस्टल रेडियस एंड अल्नर फ्रैक्चर के लिए होता है. ठीक है, सो बट दिस इज मच स्ट्रॉन्गर देन
दिस लॉन्ग आर्म पोस्टीरियर स्प्लिंट, क्योंकि इसमें ना सुपिनेशन और प्रोनेशन नहीं है, ठीक है, ये एक ही जगह पे फिक्स रहता है। ये है जी डबल शुगर टॉन्ग, इसमें एल्बो या कोई फोर आर्म का फ्रैक्चर है, ठीक है, एंड प्रॉक्सिमल, मिड, डिस्टल रेडियस या अल्ना का कोई फ्रैक्चर है। Better for most distal forearm and elbow fracture because it limits the flexion, extension, and pronation and supination. अच्छा जी, ये है फोर आर्म बोलर स्प्लिंट which is also known as cock-up splint, ठीक है, फोर आर्म बोलर स्प्लिंट है, and इसकी indications हैं soft tissue hand wrist injuries like sprain, carpal tunnel, night splints, and if most wrist fractures में ये use होता है, इवन ये रिस्ट फ्रैक्चर्स के अलावा आपके मेटाकार्पल फ्रैक्चर्स में भी हम फोर आर्म बोलर स्प्लिंट को मैंने अक्सर यूज होते हुए देखा है, ठीक है। राइट, तो ये बेसिकली ये जो छोटा सा है ये स्प्लिंट है, ये सिर्फ आपके हैंड्स को एंड मिड ऑफ योर फोर आर्म को कवर करे, सो दिस इज मोस्टली यूज्ड फॉर फोर आर्म बोलर स्प्लिंट, इज यूज्ड फॉर रिस्ट या मेटाकार्पल फ्रैक्चर्स। ये देखिए जी, रेडियल एंड अल्नर गटर आपको नजर आ रहा होगा। अब रेडियल अल्नर जो आपकी फिंगर्स होती है ना, 3.5 फिंगर्स होती हैं, 3 फिंगर्स, ये थंब, मिडिल, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर के ऊपर ये अल्नर गटर यूज होता है, और रेडियल अगर कोई इंजरी है तो हम रेडियल गटर यूज करते हैं, ठीक है, सिर्फ आपकी ये रिंग और लिटिल फिंगर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सो रेडियल गटर में इंडिकेशंस हैं जी फ्रैक्चर्स, phalangeal and metacarpal, and soft tissue injuries of little and ring finger. Whereas ulnar gutter में index and long fingers जो आपकी होंगी, ठीक है, इसमें यूज। तो डिपेंड करता है ना जिस एरिया का हो और उसी एरिया। अच्छा, जस्ट लेट्स सपोज बेस ऑफ थंब का फ्रैक्चर बड़ा कॉमन है, तो उसके अंदर हम ये थंब स्पाइका यूज करते हैं। अब बेस ऑफ थंब के ऊपर जो बोन होती है वो स्केफोइड बोन का फ्रैक्चर बड़ा कॉमन होता है, ठीक है। ये स्नफ बॉक्स टेंडरनेस, अगर आपने एनाटमी में अपना स्नफ बॉक्स पढ़ा हुआ है, decovane tenosynovitis, decovane tenosynovitis is a condition जब जो you guys need to remember anatomy for this, ये जो सॉरी, ये ये जो थंब है ना, थंब थंब के अराउंड जो टेंडन्स गुजर रहे हैं थंब में से, ये टेंडन्स होते हैं, ठीक है, एंड थंब के अराउंड ये शीट है, ये जो ब्लू कलर की मैंने शीट बनाई तो इसके अंदर टेंडन्स है। अगर ये जो टेंडन्स अंदर हैं और ये शीट है, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसको कहते हैं डीकोवेन टीनोसाइनोवाइटिस, और ये ज्यादातर कॉमन होता है आपके एथलीट्स में या वो लोग जिनकी एक्सेसिव यूज ऑफ थंब है, ओके। तो दिस इज थंब स्पाइका, इस तरह से हम यूज करते हैं ये थंब का स्प्लिन। चलें जी, ये फिंगर स्प्लिन्स, अगर आपकी फिंगर में स्मॉल फेलेंजेस स्प्रेन हो गया या फिर कोई फ्रैक्चर हो गया, तो इस तरह से जी हम बोलर फिंगर स्प्लिंट्स यूज करते हैं, ठीक है जी। दिस इज नोन एज बडी टैपिंग, ये स्प्रेन्स के लिए होता है। डायनामिक स्प्रिंटिंग है जी, इसमें आप एक फिंगर को दूसरे के साथ स्प्रिंट कर देते हो, सपोर्ट, ठीक है। अगर फ्रैक्चर्स हैं, फ्रैक्चर्स के लिए फिर आप प्रॉपर स्प्रिंट्स अप्लाई करते हो, गटर स्प्रिंट्स, ठीक है, पेंजिल गटर। ओके, दिस इज अ नी इमोबिलाइजर या posterior knee splint इसको कहते हैं। So it is for short-term immobilization of soft tissue and ligamentous injuries to the knee or calf. It allows slight flexion and extension, may add posterior knee splint to further immobilize. This is a knee immobilizer. कोई भी आपको knee की injury हो गई है, कोई भी ligament tear हो गया, तो obviously हमने excessive use of knee को condemn करना है. We do not want the patient to move his knee excessively. अगर कोई ligament tear हो गया, अंदर कोई infection भी हो गया. So just to immobilize the soft tissues and ligaments, this is the splint that we use. Posterior ankle splint है जी. अब it is used for distal tibia या fibula fractures. Okay. And it is used to reduce dislocations, severe sprains, tarsal metatarsal fractures. Use at least 12 to 15 layers of plaster. अच्छा. This is a stirrup splint.
इट इज सिमिलर टू posterior splint, बट स्टिरअप स्प्लिंट में ये होता है यहाँ पे हम एक स्लैब डाल देते हैं, वुडन स्लैब की तरह होता है, इट्स नॉट वुडन बट एक स्लैब होता है इस तरह से। इसको डालने से ये मजीद फिक्स हो जाती है ये, ठीक है। और इसकी जो फुट की मूवमेंट है ना, इन्वर्जन या इवर्जन, वो रिड्यूस होती है। सो इट इज ग्रेट फॉर एंकल स्प्रेन्स। नॉर्मली पेशेंट्स को एंकल स्प्रेन हो जाता है, ओके। एंड द डायरेक्शन ऑफ स्टिरअप स्प्रिंग, जब इसको बांध रहे होते हैं तो हम इसको मीडियल से लैटरली बांधते हैं, ओके। सो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? ये जितने भी आपके स्प्लिंट्स हैं, ये जब आप यूज करते हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इज प्रेशर सोर्स। प्रेशर सोर्स हो सकते हैं, ठीक है, इन्फेक्शंस हो सकती हैं ऑब्वियसली। आप खुद सोचो, इतना एक हैवी प्लास्टर ऑफ पेरिस आपकी स्किन के अराउंड है, ठीक है। थर्मल इंजरीज हो सकती हैं, प्लास्टर ड्राइज, बर्न्स में हॉट वाटर इंक्रीज नंबर ऑफ लेयर्स, एक्स्ट्रा फास्ट ड्राइंग, ठीक है। इस्कीमिया हो सकता है, अगर बहुत एक्स्ट्रा टाइट ये बंधा हुआ है तो इस्कीमिया हो सकता है। तो आपने पेशेंट को देखना होता है, उसकी फिंगर टोज में आप कैपिलरी रीफिल टाइम देखो। अगर कैपिलरी रीफिल टाइम ज्यादा हो गया, इसका मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्प्लिंट, आपने उसको रिमूव करना है, ओके जी। ये भी एक तरह का स्प्लिंट होता है, क्रैमर वायर स्प्लिंट, इसको लेडर स्प्लिंट भी कहते हैं, ठीक है। एंड दिस इज यूज टेम्पोरली, ठीक है। दिस इज यूज, यू कैन सी इतना हल्का सा लाइट का है, लाइट सा, so you can see there are thick parallel wires with interlacing wires and it can be bent to different shapes. ये थॉमस स्प्लिंट है। अच्छा, ये थॉमस स्प्लिंट मैंने बहुत यूज होते हुए देखा है, हिप एंड थाई की इंजरीज में ये थॉमस स्प्लिंट आपका यूज होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट विद लोअर लिम्ब इंजरी लाइक फीमर फ्रैक्चर में भी हम इसको यूज करते हैं। And was devised by Hoop Owen Thomas, initially used for immobilization for tuberculosis of the knee. Initially, तो आपने बेसिकली हिप और थाई या नी की इमोबिलाइजेशन के लिए यूज किया। अगेन, केयर ऑफ अ पेशेंट इन अ स्प्लिंट, जो भी स्प्लिंट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर स्प्लिंट इज अप्लाइड प्रॉपर्ली। बहुत टाइट एंड या टू टाइट या टू लूज नहीं होना चाहिए स्प्लिंट, ठीक है। बिकॉज अगर टू लूज होगा, उसका फंक्शन जो इमोबिलाइज करना है वो खत्म हो जाएगा। अगर बहुत टाइट होगा, इससे इस्कीमिया के चांसेस बढ़ते हैं। जब इस्कीमिया होता है तो फिर प्रेशर सोर्स, बेड सोर्स वगैरह होने के चांसेस होते हैं। एंड पेशेंट्स को आपने बार बार कहना है कि अपने वो स्पेसिफिक मसल्स या वो जॉइंट्स मूव करते रहें, ठीक है। ओके जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस आप अक्सर लोगों ने देखा होगा, ये होते हैं जी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर रोल है, ये पैडिंग रोल है वाटर। हम ये जो प्लास्टर रोल होता है, इसको वाटर में सोक कर देते हैं, इसमें एक तरह का चूना आप कह सकते हो लगा पाओ, ठीक है। मैकेनिज्म इसमें एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट होता है। तो जब ये जो कैल्शियम सल्फेट की पट्टियां हैं, प्लास्टर रोल, इनको पानी में डालते हैं, वो सोक अप होकर स्वेल अप हो जाती हैं, ठीक है। एंड वो पेशेंट की टांग या उसकी लेग या आर्म के अराउंड हम उसको स्पाइरली बांधते हैं, ठीक है। फिर हम उसको तकरीबन यहाँ पे 3 to 9 मिनट्स, बट तकरीबन हम उसको टाइम देते हैं सूखने के लिए, प्रॉपरली ड्राई आउट होने के लिए, अराउंड हाफ एन आवर। एंड 2-3 दिनों के बाद वो फिर प्रॉपर एनहाइड्रस फॉर्म में चला जाता है, बहुत स्टिफ हो जाता है, रिजिड हो जाता है, ठीक है, बिकॉज उसका पानी ड्राई आउट। Functions and to reduce pain, reduce further damage to vessels and nerves, facilitates patient transportation and immobilization. इन सब में से इसका जो मेन फंक्शन है वो है इमोबिलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर साइट। हम लेट सपोज अगर लेग फ्रैक्चर है, अगर हम उस लेग को बार बार मूव करेंगे, फ्रैक्चर्ड लेग को, तो चांसेस हैं कि फिर से डिस्लोकेशन हो सकती है, ठीक है। और हो सकता है पेशेंट रात को सो रहा हो और उसकी लेग, ऑब्वियसली नींद के अंदर कोई भी अगर इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं, just to prevent, to protect the site of fracture. Advantages: it is easier to mold and less expensive. पाकिस्तान में वही चीज यूज होती है या वही चीज ज्यादा पॉपुलर होती है which is less expensive. एक्सपेंसेस जिसके कम होते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे इंपॉर्टेंट स्प्लिंट है, सबसे कॉमनली यूज स्प्लिंट है। डिसएडवांटेज है, इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई एंड एक इसको हमने पानी से बचाना होता है। पेशेंट्स को हम कहते हैं इसके ऊपर पानी ना है, बिकॉज अगर ये पानी आ गया, ये सॉगी हो जाएगा, फिर ये ड्राई नहीं होगा, फिर दोबारा से नया प्लास्टर ऑफ पेरिस जमा। अच्छा, पीओपी एप्लीकेशन का रूल होता है जी, 1 जॉइंट अबव एंड 1 जॉइंट बिलो,
It should be molded with palm. Joints should be immobilized in functional position, not too tight, not too loose. Upper extremities use 8 to 10 layers. Lower extremities from 12 to 15 layers, up to 20 if मतलब big person. POP application technique, I have already told you, वो जो POP की जो plaster rolls हैं, they're soaked in water. जब वो अंदर excess water remove करके फिर हम उसको smoothly spirally mold around कर देते हैं. Again, इनकी complications जैसे बाकी आपके splints हैं उसी तरह से होती हैं. ये tight cast ना हो, because tight हुआ तो compartment syndrome हो जाएगा. और इसको अक्सर पेशेंट आप नोटिस करोगे जिनका रीसेंट फ्रैक्चर होता है, पीओपी होता है, तो हम उनको हमेशा कहते हैं एलिवेट योर लिम्ब टू प्रिवेंट कंपार्टमेंट सिंड्रोम. ठीक है, प्रेशर सोर्स होने के चांसेस होते हैं, बट प्रेशर सोर्स को प्रिवेंट करने के लिए ना हम कपास या फिर जो आपके कॉटन पैड्स हैं उनको रखते हैं ऑन ऑल द बोनी प्रोमिनेंस. ठीक है, स्किन एब्रेशंस, लेसरेशंस हो सकती हैं, लूज कास्ट नहीं होना चाहिए, जॉइंट स्टिफनेस हो सकती है, और उसको प्रिवेंट करने के लिए फिजियोथेरेपी. एलर्जिक डर्माटाइटिस हो सकता है, उसका सोल्यूशन है जी आप फाइबर ग्लास पेन यूज करो. ओके जी, पीओपी केयर सबसे बड़ी केयर है जी, उसको पानी से बचाना है. ठीक है, एक्सट्रीम हीट मॉइस्चर से बचाना है. ओके, अगर आपको लगता है, पेशेंट को आपने जरूर बताना है, अगर आपको लगता है कि आपके पाँव की जो फीलिंग है, सेंसेशंस है, वो खत्म हो रही हैं, या फिर आपने बताना है उनको कोई एक्सेसिव पेन स्टार्ट हो गई है, पाँव स्वोलन अप होना शुरू हो गए, जो पाँव के जो टोज हैं, टो नेल्स की कलर चेंज होना शुरू हो गए, डिसकलरेशन हो गई, प्लीज कम बैक टू अस. स्टार्ट मतलब एज सून एज पॉसिबल. ऑल राइट, सो दिस वाज टुडेज लेक्चर रिगार्डिंग explain. ठीक है, थैंक यू सो मच. अल्लाह.